Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the graph coloring. So this topic is quite lengthy topic, so we have to go through some 5 or 6 video lectures. So today I am starting with the chromatic number. Okay, this topic is very important for the semester as well as for the other engineering exams. So first of all, we have to learn about the graph coloring. What is the definition of a graph coloring? So generally the main application of the graph coloring can be seen whenever we want to color a map. That is, if we want to take India and there are so many states and the states are adjacent with some borders. Now if we want to measure or want to distinguish all the states by some colors such that no two adjacent states will get the same color, so such type of thing can be happen with the help of the graph coloring. So quite it is impossible or it will be very difficult if a country has so many states and to color all the states with different color. So the thing is that in the graph coloring we have to find out the minimum number of colors by which process we can color the whole map such that no two adjacent states will be of the same color. सो इसके लिए हम लोग को दोनों चीज जानना जरूरी है. एक होता है वर्टेक्स कलरिंग, दूसरा होता है एज कलरिंग. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. सो नाउ व्हाट इज द वर्टेक्स कलरिंग? सपोज इफ सिंपल ग्राफ इज गिवन, then the graph is said to be k vertex colorable if it is possible to assign a color from the set of k number of colors to each of the vertices such that no two adjacent vertices will be of the same color. Okay, so suppose we have drawn here a graph and obviously you can see that the 4 vertices can be colored with 4 different colors. So we can say that this vertex is a 4 vertex colorable. Also we can say that this graph is a 100 vertex colorable. Why? Because of the fact that if we choose 100 set of colors in our hand, so it is obviously possible to take 100 colors different way such that no two adjacent vertices will be of same color. तो एक ग्राफ पे जितना भी वर्टेक्स है वो होता है उसका के कलरेबल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना. तो उससे ज्यादा भी कलर हम लोग चूज कर सकते हैं. कि समझ लो ये ग्राफ पे मैंने 4 कलर से कलर किया हुआ है, बट मैं अगर 10 कलर्स का कोई भी एक सेट लेता हूं और उससे अगर मैं कलर चूज करके ये वर्टेक्स पे पुट करूंगा तो भी मैं क्या कर सकता हूं, 4 डिस्टिंक्ट कलर को ले सकते हैं. तो वी कैन नॉट से दैट दिस ग्राफ इज ओनली 4 वर्टेक्स कलरेबल. सो वर्टेक्स कलरेबिलिटी के लिए जो k नंबर ऑफ सेट है, जो k नंबर ऑफ एलिमेंट है जो सेट के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है. 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है. तो हम लोग कह सकते हैं ये ग्राफ के लिए ये 4 वर्टेक्स कलरेबल है. ऑल्सो इट कैन बी से दैट दिस ग्राफ इज 100 वर्टेक्स कलरेबल. लेकिन हम लोग को तो वर्टेक्स कलरेबिलिटी नहीं चाहिए था. जो मैंने अभी तुम लोगों को कहा कि अगर हर एक स्टेट को हम लोग डिफरेंट कलर देंगे तो वो कुछ डिफिकल्ट लगेगा हम लोगों को ग्राफ को, स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे अभी तुम सोच रहे हो तो कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है थ्रू ओवर इंडिया पे, और जो जो रेड जोन है या फिर जो जगह पे बहुत रैपिड टेस्ट हो रहा है, अगर दोनों को हम लोग डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को डिफरेंट कलर से उसको बनाना है, ठीक है ना. तो अगर डिफरेंट कलर हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारा कलर यूज करेंगे तो बहुत ही हम लोग को दिक्कत हो जाएगा. ये समझने के लिए ये कलर मैंने इसके लिए चूज किया था या फिर ये कलर हम लोगों ने इसके लिए चूज किया है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं. हम लोग को क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर ढूंढना है, ठीक है. तो क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, अभी देखो. द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इन सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस आर ऑफ द सेम कलर. यही काम करना है लेकिन लिस्ट नंबर ऑफ कलर से करना है. Two adjacent vertices will be of the different color, but we have to take it by the least number of color. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू अगर चारों वर्टेक्स में चारों कलर देते तो ये के 4 वर्टेक्स कलरेबल है. लेकिन ये ग्राफ को हम लोग दोनों कलर से भी कलर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने रेड दिया है तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स रेड वर्टेक्स के एडजेसेंट है, तो ये दोनों वर्टेक्स पे हम लोग रेड कलर नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग रेड कलर देंगे और ये दोनों पे हम लोग ग्रीन कलर देंगे. तो ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज ए 2 vertex colorable. List number of colors required is 2.
therefore this is nothing but the known as the chromatic number. The least number of colors which required to color all the vertices is nothing but known as the chromatic number. तो एक ग्राफ अगर k क्रोमेटिक हो जाता है तो वो कभी भी k-1 क्रोमेटिक नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ तो 2 क्रोमेटिक है, तो 1 कलर से हम लोग ये ग्राफ को नहीं कलर कर सकते हैं, वो लिस्ट नंबर होता है. ठीक है, अभी चले आते हैं एज कलरिंग पे. एज कलरिंग और वर्टेक्स कलरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, वो वर्टेक्स के लिए एप्लीकेबल है और ये एज के लिए एप्लीकेबल होगा. सो व्हाट इज द एज कलरिंग? एज कलरिंग इज नथिंग बट दैट वी हैव ए के number of colors in our hand, and if it is possible to assign every color from the k set of colors to the edges of the graph such that no two adjacent edges will be of the same color. दोनों जो एज है adjacent edges दोनों पे सेम कलर नहीं होगा. क्लियर? तो जैसे क्रोमेटिक नंबर वर्टेक्स के लिए होता है, ये इसका भी एक क्रोमेटिक नंबर होता है, हम लोग उसको कहते हैं एज क्रोमेटिक नंबर. ठीक है, तो वर्टेक्स क्रोमेटिक नंबर को हम लोग काई जी से डिनोट करते हैं, वो ही मेन क्रोमेटिक नंबर है, और एज क्रोमेटिक नंबर को काई डैश्ड जी से डिनोट करते हैं. तो काई डैश जी क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ कलर, दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर ऑल द एजेस such that no two edges will be of the same color, adjacent edges will be of the same color. Okay, so you can see that from this example I have drawn that chi dashed g equals to 3. Okay, now some important notes I want to say all of you. From here so many short questions as well as theorems can be proved with the help of these simple results. So think about this. If a graph has n number of vertices, then the chromatic number cannot be cross n, cannot cross n. It may be maximum equal to n or the value may be less than equal to n. Okay, remember this. If the vertex graph has n number of vertices, then chi g must be less equal to n. Now if you choose a null graph means that there will be no edge set, that is edge set is empty, only vertices are present. तो एक कलर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी वर्टेक्स को कलर कर सकते हैं, क्योंकि सभी वर्टेक्स क्या है? डिस्टिंक्ट है. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? 1 क्रोमेटिक हो जाता है. अभी अगर चले आते हैं कोई ग्राफ पे अगर सेल्फ लूप है या फिर पैरेलल एज है, तो सेल्फ लूप क्या है? एक ही एज जिसका एंड वर्टेक्स सेम होता है. ठीक है ना, तो लॉजिक समझो. अगर कोई वर्टेक्स कलरिंग हम लोग को करना है तो इसका मतलब क्या होगा? जिस वर्टेक्स को हम लोग रेड कलर दे रहे हैं उसके एडजेसेंट जो वर्टेक्स है उसमें हम लोग रेड कलर नहीं दे सकते हैं. तो सेल्फ लूप के लिए क्या हो जाता है? वही वर्टेक्स खुद से कनेक्टेड होता है, तो खुद ब खुद वो एडजेसेंट है खुद से. सो वी कैन नॉट असाइन एनी कलर टू द सेल्फ लूप्स. द सेम थिंग हैपेंस फॉर द पैरेलल एजेस. तो अगर कोई जगह पे सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज मिल जाता है तो हम लोगों को पहले उसको हटाना है, उसके बाद कलर करेंगे. ठीक है ना, तो अगर कोई ग्राफ पे सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज है तो वहां पे हम लोग कलर नहीं कर सकते, उसको पहले हटाएंगे उसके बाद कलर करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये थ्योरम में बहुत एप्लीकेशन आता है. समझ लो H एक सब ग्राफ है G का. सब ग्राफ के बारे में मैं फंडामेंटल ऑफ ग्राफ के चैप्टर में बोला है, अगर भूल गए हो तो उसको पहले जाके देख लो. सो सपोज वी हैव ए सब ग्राफ H ऑफ द ग्राफ G, then the chromatic number of the subgraph must be less than equals to chromatic number of the graph, obviously, because H is a subgraph of the G, so H contains lesser number of vertices, lesser number of edges, so obviously chromatic number of H will be less than equals to chromatic number of G. तो यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे जो थ्योरम्स एक्चुअली एग्जाम्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एल्गोरिदम्स के लिए भी. ग्राफ कलरिंग से बहुत सारा एल्गोरिदम तुम लोगों को करना पड़ता है, मुझे मालूम है. कंप्यूटर साइंस में भी, आईटी पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों को ये सोचना है. ठीक है ना. सो द फर्स्ट थ्योरम सेज दैट ए ग्राफ इज के वर्टेक्स कलरेबल if and only if each block in it is also k vertex colorable. Here you can see that it is the if and only if condition, that is it is a necessary as well as sufficient condition. So what is the statement? On the statement says what? A graph will be k vertex colorable. यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि ये k vertex colorable है. मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो k vertex colorable if and only if each block in it is also k vertex colorable. तो ब्लॉक क्या होता है? मैक्सिमल कनेक्टेड सबग्राफ which has no cut vertex. सो अगर कोई ग्राफ पे कोई ब्लॉक्स है तो अगर सभी ब्लॉक्स k vertex colorable होगा तो वो ग्राफ भी k vertex colorable होगा, और अगर ग्राफ k vertex colorable है तो उसका जो सभी ब्लॉक होगा वो भी k vertex colorable होगा. वाइस वर्सा केस. सो पहले हम लोग एज्यूम कर रहे थे
the graph is k vertex colorable. So if the graph is k vertex colorable, then obviously every block is nothing but a subgraph of the graph. तो अगर ग्राफ को हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर से कलर कर सकते हैं, सपोज ग्राफ को हम लोग 10 कलर से कलर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ का कोई भी सब ग्राफ अगर हम लोग चूज करेंगे उसको भी हम लोग 10 कलर से कलर कर सकते हैं. दैट इज द थिंग. सो इफ ए ग्राफ इज k vertex colorable, then every block is obviously k vertex colorable. इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है. कॉन्वर्स पार्ट में लेंथी होता है, इसको प्रूफ करना है. सपोज द ग्राफ every block in the graph is k vertex colorable. Converse part, suppose G be a graph where every block is k vertex colorable. So suppose if G is itself a connected graph and non-separable graph, G में कोई कट वर्टेक्स नहीं है, तो वो खुद ब खुद एक ब्लॉक है. तो अगर वो खुद ब खुद एक ब्लॉक है तो हर एक ब्लॉक में हम लोग k वर्टेक्स कलर से कलर कर रहे, तो इसका मतलब ग्राफ भी क्या हो गया, k वर्टेक्स कलरेबल हो गया. इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. अभी चले आओ, अगर ग्राफ में ब्लॉक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स के ऊपर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे. सपोज वी आर प्रूफिंग एज्यूमिंग दैट द ग्राफ इज इटसेल्फ ए ब्लॉक, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली वन ब्लॉक. अगर वो खुद ब खुद एक ब्लॉक है और ब्लॉक को हम लोग के वर्टेक्स से कलर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, के वर्टेक्स से कलर हो रहा है, तो रिजल्ट ट्रू है कि वन ब्लॉक के लिए. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स. Okay, result is true for r number of blocks. Now we have to that is means if the graph has r number of blocks where each block is k vertex colorable, then the graph is also k vertex colorable. That is our assumption. Now we have to prove that the graph has r plus 1 number of blocks, and if the graph is each block is k vertex colorable, then the graph will be also k vertex colorable. तो समझ लो मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, जहां पे v वर्टेक्स क्या है, कट वर्टेक्स है. तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर v वर्टेक्स को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे चारों ब्लॉक मिलेगा हम लोग को. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज एक ब्लॉक को हम लोग हटा रहे हैं और इस ब्लॉक को हमने नाम दिया हुआ है b. ठीक है, सो लेट v बी एनी वर्टेक्स, कट वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ आफ्टर रिमूविंग विच वी हैव ए ब्लॉक. सपोज v ये है कट वर्टेक्स, एक ब्लॉक को हमने यहां से हटा दिया है और ये ग्राफ पे भी v रहेगा और इस ग्राफ पे भी v रहेगा. तुम लोग जानते हो क्यों, क्योंकि ब्लॉक का डेफिनेशन ही ये है. तो यहां पे चारों ब्लॉक था, तो समझ लो मेरा r है 3, दैट इज बाय आवर अजम्पशन r इक्वल टू 3. तो यहां पे मैंने r प्लस 1 लिया है, तो r प्लस 1 है 4. तो ये ब्लॉक को हम लोग यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना. तो अभी ग्राफ पे कितना ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है. तो 3 का मतलब क्या था, r नंबर ऑफ ब्लॉक. तो r नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए हम लोगों का एजम्पशन क्या था, अगर ग्राफ में r नंबर ऑफ ब्लॉक होगा तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, k वर्टेक्स कलरेबल. तो ये ग्राफ के वर्टेक्स कलरेबल होता है. अभी ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ तो मेन ग्राफ का सब ग्राफ है और ये एक सिंगल ब्लॉक है, तो ये भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, के वर्टेक्स कलरेबल हो जाएगा. अभी देखो हम लोग एक कलर करेंगे वी वर्टेक्स पे ऐसे कि ये तो वी वर्टेक्स कॉमन है ना, ये ब्लॉक में भी वी वर्टेक्स है, यहाँ पे भी वी वर्टेक्स है. तो ये वी वर्टेक्स को अगर हम लोग एक ही कलर देंगे, सपोज रेड कलर दे रहे हैं, तो क्या हम लोग को नया कोई कलर ढूंढना पड़ रहा है या फिर हम लोग को के वर्टेक्स से ही हम लोग इसको कलर कर सकते हैं. Obviously you can see that only k number of colors are required to color all the graph if you choose the common vertex v as the same color in block b as well as in block h. यही मैंने बात यहाँ पे समझा के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. तो अगर ये वर्टेक्स को हम लोग सेम कलर देंगे जो h ग्राफ पे है, तो न्यू कलर हम लोग को नहीं लगेगा. तो इट मीन्स दैट k नंबर ऑफ कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा ग्राफ को कलर कर सकते हैं. हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, नो need to vary, just we have to think about that the common cut vertex must be of the same color as in the block as well as in the main graph. Okay, so result is true for all number of blocks, hence by principle of mathematical induction the result is true. अभी चले थे थ्योरम 2 पे. थ्योरम 2 says that the chromatic number of a graph is k if the chromatic number of each block in it is also k. Now you see that it is a one side condition, both side condition is it is not given because it is not if and only if condition. So chromatic number of a graph will be k if the chromatic number of each block in it is k. तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई ग्राफ पे हर एक ब्लॉक k chromatic होगा, that is minimum number of colors required to color each block is k, then the chromatic number of the graph will be equal to k. उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है. ग्राफ अगर k chromatic है तो इसका मतलब ये नहीं होगा
के सभी ब्लॉक के क्रोमाटिक होगा, लेकिन अगर सभी ब्लॉक के क्रोमाटिक होता है तो ग्राफ भी क्या होगा, के क्रोमाटिक होगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। सपोज G be a graph having R number of blocks G1, G2, Gr, where each and every block is K chromatic. Okay, chi of Gi is equal to K. Now every block is K chromatic, तो every block is K vertex colorable. क्रोमाटिक का मतलब क्या है, कलर कर रहे हैं ना, तो अगर every block is K chromatic, then every block is K vertex colorable. So by previous theorem we know that if every block is K vertex colorable, then the graph is also K vertex colorable. So if the every block is K chromatic, then it is K vertex colorable, so the graph becomes K vertex colorable. Now this K vertex colorable and K chromatic, there are huge and hell and heaven difference. Chromatic number है least number of vertex color, लेकिन कलरेबल के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम भी चूज कर सकते हैं. सो वी आर एस्यूमिंग दैट इफ पॉसिबल chi ऑफ g इक्वल टू m लेस देन k. समझ लो ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर है m जो k से छोटा है, ठीक है. g k वर्टेक्स कलरेबल है, लेकिन k क्रोमेटिक नहीं प्रूफ किया है हमने, k क्रोमेटिक प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या पकड़ रहे हैं कि g का क्रोमेटिक नंबर m है जो k से छोटा है. लेकिन अगर हम लोग ये एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू m. That means what? The graph is m vertex colorable. So अगर ग्राफ m vertex colorable है तो प्रीवियस थ्योरम में क्या बोला गया था, वो इफ एंड ओनली कंडीशन था. तो प्रीवियस थ्योरम से हम लोग कहेंगे कि हर एक ब्लॉक क्या हो जाता है, k vertex colorable हो जाता है. तो हर एक ब्लॉक का क्रोमेटिक नंबर भी क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा. लेकिन क्रोमेटिक नंबर ऑफ ईच ब्लॉक इज व्हाट वी हैव एज्यूम्ड हियर, दैट इज इक्वल टू k. तो कंट्राडिक्शन आ रहा है. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि k है यहाँ पे, दूसरा बात ये है m k से छोटा है, तो अगर k वर्टेक्स कलरेबल है तो k यानी k क्रोमेटिक है, तो इससे कम तो कुछ कलर्स नहीं लगेगा ना gi के लिए. सो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है. तो कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग पकड़ रहे थे कि द ग्राफ इज m क्रोमेटिक. सो दिस assumption is false. So m cannot be less than k. So chi g will be equals to k. Okay. Now obviously the converse of the statement is not true. जो मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि अगर ग्राफ के क्रोमेटिक है तो ब्लॉक भी के क्रोमेटिक होगा, ये नहीं है जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है. ये एग्जांपल और ये थ्योरम दोनों एक साथ आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम पे. द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इक्वल टू n. बहुत ही आसान है, देखो kn be a complete graph. तो complete graph का डेफिनेशन क्या होता है, between any two distinct pair of vertices we must have an edge. So every vertex of the complete graph is adjacent with other vertices. Say we are assuming n vertices are there and they are v1 v2 vn. So obviously v1 is adjacent with v2 v3 vn, v2 is adjacent with v1 v3 vn, etc. So let us start with the vertex v1. Say we are assigning a color c1 to the vertex v1. Since v1 is adjacent with v2 v3 vn, so v2 cannot be colored by c1, so we have to choose another color for v2. Say the color is c2. Now you can obviously see that v2 is also adjacent with v3 and v3 therefore cannot be assigned the color c2, because of the fact that no c1 no c2 can be assigned at v3, because of the fact v3 is also adjacent with v1 as well as v2. So a new color will be assigned to v3, that is c3. So proceeding in this way, all the vertex can be colored by n number of colors. So that is the minimum number of colors required to color a complete graph. So complete graph का chromatic number क्या होता है, जो number of vertex होता है वही होता है. ठीक है, अभी चले जाते थ्योरम 4. ये हमारा आज का लास्ट थ्योरम है. द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए साइकिल विथ n वर्टिसेस, साइकिल को cn से हम लोग डिनोट करते हैं, साइकिल विथ n वर्टिसेस 2 होगा अगर n इवन होता है, 3 होगा अगर n ऑड होता है. तो मैं समझा देता हूं, उसके बाद तुम लोग यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है ना. तो समझ लो हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टेक्स है v1 v2 vn. सपोज वी आर एस्यूमिंग दैट n इज इवन, सो n विल बी लुक लाइक दिस. सो इफ इट इज एन इवन लेंथ साइकिल, then obviously the vertex v1 can be assigned color c1. Now if v2 is adjacent with v1, then v2 cannot be assigned the color c1, v2 can be assigned the color c2. Now v2 will be adjacent with v3 and v3 is not adjacent with v1 because of the fact that the length of the circuit is even. अगर v3 और v1 adjacent हो जाता है तो वो सर्किट क्या हो जाता है, लेंथ ऑड हो जाता है. तो v3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, v1 में जो कलर हम लोगों ने असाइन किया था वो कलर को v3 में दे सकते हैं. तो ऐसे करके अगर प्रोसीड करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं जो लास्ट वर्टेक्स होगा वो किसके साथ कनेक्टेड होगा,
वो V1 के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, एडजेसेंट होगा। तो V1 में तो क्या कलर था, रेड कलर था, या फिर कोई कलर C1 था, तो वो कलर हम लोग को नहीं देना है। जो Vn के साथ कनेक्टेड नहीं है, कौन सा वाला Vn के साथ नहीं कनेक्टेड होगा, V2 कनेक्टेड नहीं होगा, तो V2 का कलर दे दो। तो ऐसे करके अगर हम लोग कलर करेंगे तो मैक्सिमम माने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ इज नथिंग बट 2। तो दोनों कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा ग्राफ को कलर कर सकते हैं। So that is the thing. If the length of the circuit is even, then it will be 2. And the same logic happen for the odd. Now, in case for the odd length circuit, obviously you can see that V1 can be colored by C1, V2 can be colored by C2, V3 will be adjacent with V1, may be adjacent with V1 if it is a circuit of the smallest length. That is the three edges are there. So, so V3 will be adjacent with V1. So we can say that it will be not the color of C1. So another color C3 must be assigned. Or if we think about in general sense, say n number of vertices are there, then after n minus 1 steps we can see that the last vertex Vn will be adjacent with V1 also, as well as Vn will be adjacent with Vn minus 1 also. So V1 पे एक कलर है C1, Vn minus 1 पे एक कलर है C2, तो दोनों कलर हम लोग Vn पे नहीं असाइन कर सकते हैं। तो Vn पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कोई कलर हम लोग असाइन करेंगे और वो ही हो जाएगा हमारा क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, अभी तुम लोग को शायद ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी।